Welcome to Plan and Practice Hindi channel. Today we will see Madhyama poem Ek Boond. One drop or one blob. It is the poem written by Sri Ayodhya Singh Upadhyay Hariaur. Now we'll go to the poem. Ek Boond, second poem in Madhyama Padya. दो जूं निकलकर बादलों की गोद से बी अभी थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी सोचने फिर यही जी में लगी आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी. So there is a drop of water from which came from lap of clouds. Cloud is there, from its lap a drop started expanding and going ahead. It started thinking to itself, why did I leave my home? And I started going ahead and started going ahead and moving away from my home. दे मेरे भाग्य में क्या लिखा है पता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी चू पड़ूंगी या कमल के फूल में. So what the God has written for me in my luck or in my fate, whether I will survive or I will mix with the dust, or will I burn in piece of fire or burning coal. We say it as ember. Angare is ember, a piece of coal, burning coal. Whether I will get burnt in fire, in piece of fire, that is burning coal, or whether I will touch the flower lotus. So what is written in my luck? The drop of water which started from the lap of cloud is thinking. बह गई उस काल एक ऐसी हवा वह समुद्र और आई ननमनी अनमनी. बह गई उस काल एक ऐसी हवा, बह गई उस काल एक ऐसी हवा वह समुद्र और आई अनमनी. एक सुंदर सी का मुंह था खुला वह उसी में जा पड़ी मोती बनी. So there was a wind which was flowing, and from there it reached the sea, and dejectedly it started moving ahead. Suddenly there was an oyster which was opening its mouth. It went and fell in the mouth of oyster, and it became a pearl. And it became a pearl. So what did it do? It went away along with the wind, and it went with the sea, and it dejectedly started falling in the mouth of oyster, and its luck was it became a pearl. लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है घर. So people are hesitant to leave their house,
like this drop of water as it started from the lap of clouds. But it often happens, leaving the house, it becomes far better and becomes like a pearl as this droplet has become. As this droplet has become. So sometimes it fetches luck in the life if we move from our place. That is, leaving the house, sometimes we reach the destination to a big place. So this is the poem Shri Ayodhya Singh Upadhyay Haryod. We'll go to the Sabdarth. Badi Nikli, Badi Nikli, Angara Aag, Anmani Anicha, Anicha, Anmani Anicha, Bada लिखा हुआ लिखित समुद्र सागर समुद्र झिझकना संकोच करना झिझकना संकोच करना. Now we'll go to the अभ्यास पाठ. निम्नलिखित पंक्तियांश का भावार्थ हिंदी में लिखिए. देव मेरे भाग्य में क्या है बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में. या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, छू पड़ूंगी या कमल के फूल में. These are the 4 lines of the poem. So we are going to write the bhavarth for these 4 lines. संदर्भ. यह पद्यांश एक बूंद नामक कविता से लिया गया है. इस कविता के कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ. So this line is taken from the poem Ek Boond and the poet name is Shri Ayodhya Singh Upadhyay Hariho. भावार्थ. बादलों की गोदी में से निकलकर एक बूंद बाहर आई. उसने भगवान से पूछा कि उसके भाग्य में क्या लिखा है. वह बाहर निकलकर बच पाएगी या धूल में मिलकर मिट जाएगी. उसे मालूम नहीं कि वह अंगारे में पड़कर जब जल जाएगी या कमल के फूल के दलों पर गिर पड़ेगी. उसने नसीब में क्या लिखा है. उसके नसीब में क्या लिखा है. नेक्स्ट 4 लाइन्स. लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर. संदर्भ. यह पद्यांश एक बूंद नामक कविता से लिया गया है. इस कविता के कवि हैं श्री अयोध्या उपाध्याय हरिओ. भावार्थ. इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि लोग अपने घर छोड़कर बाहर निकलते समय हिचकते हैं, डरते हैं, लेकिन उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको यह विश्वास होना चाहिए कि वे इस बूंद की तरह अच्छी जाकर उत्कृष्ट बन सकते हैं. उत्कृष्ट बन सकते हैं. तो सेकेंड पार्ट. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. There are some questions and we have to write the answer for this. First question. बूंद बादलों की गोद से निकलकर क्या सोचती है. So what does the drop of water think as it comes out from the lap of the clouds? बादलों की गोद में से निकलकर बूंद यह सोचती है वह कहाँ जाने वाली है और वह अपने आप को बचा पाएगी या मिट जाएगी. So the droplet is thinking where it is going to go and whether it can survive or get destroyed.
सेकेंड क्वेश्चन, कवि बूंद के भाग्य का वर्णन कैसे करते हैं? बूंद अपने भाग्य पर बहुत चिंतित और सोचती है कि उसका भाग्य अच्छा है या बुरा, वह अच्छी जगह पहुंच पाएगी या बुरी जगह जाकर फंस जाएगी। So the droplet is thinking, the drop of water is thinking or worried about whether what is the fate of it, whether it will survive in a good place or it will go and struck up somewhere in a wrong place. थर्ड क्वेश्चन, बूंद कैसे मोती बन जाती है? बूंद अपना रास्ता खोजते गई, अचानक हवा तेज बहने लगी और बूंद उस बहाव में समुद्र की एक सीप के खुले मुंह में जाकर गिरी और मोती बन गई। So the drop of water started going along with the wind. It went and fell in the mouth of oyster and it became a pearl. फोर्थ क्वेश्चन, एक बूंद कविता का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को आशावादी होना चाहिए, यही इस कविता का उद्देश्य है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, एक बूंद कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यू आर गोइंग टू राइट द समरी ऑफ द पोएम। सो व्हाट इज देयर इन द पोएम? सो बादलों की गोद में से निकल कर पानी की एक बूंद आगे बढ़ी और बार बार सोचने लगी कि वह क्यों घर से बाहर निकली। वह भगवान से पूछती है कि वह बच पाएगी या धूल बनकर मिट्टी में समा जाएगी। वह पूछती है कि वह अंगारे में पड़कर जल जाएगी या कमल के फूलों के दलों पर गिर पड़ेगी। उस समय एक ऐसी हवा बहने लगी जिससे वह बूंद अनायास ही समुद्र में जाकर गिर पड़ी। समुद्र में एक सुंदर सीप का मुंह खुला था और वह बूंद उसी सीप में जाकर गिर पड़ी और वह मोती बन गई। कवि कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो घर से निकलते समय झिझकते हैं, डरते हैं, लेकिन वह घर छोड़कर धीरज होकर बाहर जाने से वे बूंद की तरह मोती, महान व्यक्ति भी बन सकते हैं। So this is the poem एक बूंद. You can read and you can write and see. Once you understand and you start practicing, you will feel it easy to get the poem. Thank you.